ભાવનગર સાયબર ફ્રોડનું મોટું રેકેટ પર્દાફાશ 134 બેંક એકાઉન્ટ દ્વારા કરોડોનું ટ્રાન્ઝેક્શન ગેંગ સામે ગુજસીટો કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી ભાવનગર શહેરના બોરતલાવ પોલીસે સાયબર ક્રાઇમ આચરતી એક મોટી ગેંગને ઝડપી પાડી છે મુખ્ય સૂત્રધાર દશરથ રામજીભાઈ ધાંધલિયા સહિતની ટોળકીએ કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચર્યું હોવાનો ખુલાસો થયો છે પોલીસે સમગ્ર ગેંગ વિરુદ્ધ ગુજસીટો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે ભાવનગર શહેરના બોરતલાવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સંગઠિત સાયબર ક્રાઇમ આચરતી એક મોટી ગેંગનો પોલીસે ઝડપી પાડી છે મુખ્ય સૂત્રધાર દશરથ રામજીભાઈ ધાંધલિયા અને તેની ટોળકી દ્વારા આચરવામાં આવેલા કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડમાં હવે પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુજસીટો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે ભાડે રાખેલા 134 બેંક એકાઉન્ટ્સ અને 21 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન આ ગેંગ કુલ 134 જેટલા બેંક એકાઉન્ટ્સ ભાડે અથવા કમિશન પર ચલાવતી હતી આ એકાઉન્ટ્સમાં અત્યાર સુધીમાં અંદાજે ₹21.39 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા છે નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ એનસીઆરપી પર નોંધાયેલી 272 જેટલી ફરિયાદોના આધારે જાણવા મળ્યું છે કે આ એકાઉન્ટ્સમાં જ ₹6.11 કરોડથી વધુની ફ્રોડની રકમ જમા થઈ હતી મોડસ ઓપરેન્ડી કમિશનની લાલચ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીનું કનેક્શન આ ગેંગ સામાન્ય લોકોને કમિશનની લાલચ આપી તેમના નામે બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવવામાં આવતા એકાઉન્ટ ખોલતા જ તેની પાસબુક એટીએમ કાર્ડ અને લિંક કરેલું સિમ કાર્ડ આરોપીઓ પોતાના કબજામાં લઈ લેતા ત્યારબાદ સાયબર ફ્રોડના નાણાં આ એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવતા હતા સાયબર ફ્રોડના નાણાં આ એકાઉન્ટમાં આવતા જ તેને તુરંત એટીએમ મારફતે ઉપાડી લેવામાં આવતા અથવા અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાતા વિદેશ મોકલવાની રીત આ રકમને છેલ્લે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં કન્વર્ટ કરી વિદેશ મોકલી દેવામાં આવતી હતી ગેંગ લીડર દશરથ ધાંધલિયાએ આ નેટવર્ક ચલાવવા માટે નીચે મેનેજર સ્તરના વ્યક્તિઓની નિમણૂક કરી હતી આ ટોળકી માત્ર ભાવનગર જ નહીં પણ સુરત અને અમરેલી સહિત સમગ્ર ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ સક્રિય હતી પોલીસે આ કેસમાં દશરથ રામજીભાઈ ધાંધલિયા આર્યન ઉર્ફે લલ્લા શીલરામભાઈ જેઠવા હિતેશ ઉર્ફે બુરો હીરાલાલ ચૌધરી રાહુલ હરગોવિંદભાઈ ગોહેલ શાકિરભાઈ યુનુસખાન કુરેશી માહિન યુનુસખાન કુરેશી મિરીશભાઈ ભગવાનભાઈ સરવૈયા અમનભાઈ ઇશ્કુલાલ ઓડેશા હર્ષદસિંહ અનુકુલા સરવૈયા દીપકભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ગોયલની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે આરોપીઓ અગાઉ ઝડપાયા હોવા છતાં જેલમાંથી બહાર આવી ફરી આ જ પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાતા હોવાથી પોલીસે આ વખતે કડક કાયદાકીય શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે બોરતલાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપીઓ સાયબર ફ્રોડ સહિત નીચે મુજબ ગુજસીટોક એક્ટ કોઈપણ વ્યક્તિએ નજીવા કમિશન કે લાલચમાં આવીને પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ એટીએમ કાર્ડ કે સિમ કાર્ડ અજાણી વ્યક્તિને વાપરવા આપવું નહીં આવું કરવું એ ગંભીર સાયબર ગુનામાં સહભાગી બનવા સમાન છે અને તેમાં જેલની સજા પણ થઈ શકે છે હિરેન મારુ સાથે ફિરોઝ મલિક ભાવનગર हाँ, ये जो 134 अकाउंट है ना, ये भावनगर के ही हैं। इन्हीं के ऊपर फरियाद हुई है। ऐसे तो बहुत सारी फरियाद हुई हैं। एनसीआरपी पोर्टल पे तो बहुत फरियाद होती हैं, बट मेरे लिए कितनी रेलेवेंट है जो 134 से एसोसिएटेड हुई है कि इन अकाउंट में मैंने फरियाद दाखिल करी, तो एक अकाउंट में मल्टीपल फरियाद भी एनसीआरपी पोर्टल पे आई है। तो ये सारे अकाउंट भावनगर के ही हैं और ये सारी की सारी कंप्लेंट इन्हीं अकाउंटों से रिलेटेड है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये तो हमें तभी मालूम पड़ेगा कि दशरथ कैसे पैसे लेके आ रहा है और ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा तो हमने जो अभी आइडेंटिफाई किया 20 करोड़ एग्जैक्टली पैसा साइबर फ्रॉड का कहां से आ रहा है। अब एनसीआरपी पोर्टल पे हरियाणा में एक अकाउंट है, मेरा अकाउंट है जैसे भावनगर में, उस पर कंप्लेंट हुई एनसीआरपी पोर्टल में कि ये इसमें मेरा पैसा गया है साइबर फ्रॉड का, डिजिटल अरेस्ट का, या फिर कोई और ऑन स्क्रीन पेमेंट होते हैं कई सारे, आपको पता होंगे कि हैंग हो जाता है फोन, अरे मतलब रैंसमवेयर टाइप का होता है, तो वो हरियाणा से आया। वही हमको तपास करनी है कि ऊपर कौन है और ये पैसा कहां जा रहा है, दशरथ का रोल क्या है, दशरथ के ऊपर कितने लोग हैं, ये अभी सारा तपास का विषय रहेगा। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, हम उसका पासपोर्ट वो कर सकते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस दे सकते हैं, दुबई की पुलिस के साथ संलग्न है, सीबीआई के थ्रू हम आगे कामगिरी कर सकते हैं, पर पहले हमको चौकस ये करना पड़ेगा कि वो है भी है कि नहीं है। जरूरी नहीं कि वो कहीं भी हो सकता है, वो अभी भावनगर में भी हो सकता है, अहमदाबाद में भी, उसमें हमारी पूरी कोशिश चालू है। अभी कोई रिकवर नहीं हुई क्योंकि ये सारा पैसा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 21 करोड़ 8 करोड़ फ्रीज किया और बाकी जो है मूव करके ऑफशोर जा चुका है। पूरा कांड कितने समय से चल रहा है? ये लगभग अभी जो एनसीआरपी पोर्टल है उस पर पिछले 1 साल का डेटा है। ये 1 साल में
ये सारे जो कैश है वो कैश फिर वापस चले भी गए हैं। हाँ वही मैंने बताया ना, सर्किल कंप्लीट कैसे हो रही है। ऊपर से साइबर का पैसा आया, म्यूल में भेजा, फिर म्यूल ने जो है म्यूल कैश आउट वाले म्यूल्स ने उसको निकाला और जो है हवाला नेटवर्क के थ्रू आगे भगा दिया। सारे के सारे 134 अकाउंट जो भावनगर में वही नहीं, ये तपास का विषय है कि उसमें एग्जैक्टली कितने अकाउंट्स में कैश आउट हो चुका है, कितने में कैश इन हुआ है। 134 वो हैं जिन पे कंप्लेंट रजिस्टर हुई है एंड ऑल आर फ्रॉम भावनगर। सर अंगड़िया पेटी की कोई पूछताछ की हो भावनगर? बिल्कुल, अब ये अगला स्टेप यही होगा। मतलब और ये जो अब जरूरी नहीं है कि आंगड़िया इन्वॉल्व है, बट पॉसिबिलिटी है। 134 अकाउंट है सर, उसमें इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है तो कई बार ऐसा हुआ है कि इनकम टैक्स या जीएसटी की नोटिस गई हो। ये अब क्या होता है इनकम टैक्स में, जैसे एक दूसरे केस में क्या हुआ है, वो 2-3 साल 4 साल बाद देते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इन्होंने क्यों ये एक ऑर्गेनाइज स्केल पे चल रहा है। ऑर्गेनाइज स्केल क्राइम और नॉर्मल क्राइम में क्या अंतर है? ऑर्गेनाइज स्केल क्राइम को पता होता है, मतलब ऑर्गेनाइज वो एकदम कंपनी की तरह चलता है, उसके दिमाग में है कि मेरे को कितना ट्रांजैक्शन करना है जिससे कि मैं इन्फोर्समेंट एजेंसी की रडार में ना हूं। तो उसने अकाउंटों को यूज एंड थ्रो किया कि भाई व्यापारा और फेंक दिया, फिर उसी बंदे का दूसरी बैंक का दूसरा अकाउंट व्यापारा फेंक दिया, उसमें फिक्स रखेगा वो जिससे कि इन्फोर्समेंट एजेंसी में ना आए। इसीलिए हम इसको ऑर्गेनाइज बोल रहे हैं। सर ये वन टाइप कॉल सेंटर कह सकते हैं। हो सकता है ऊपर का पैसा हो सकता है कॉल सेंटर के थ्रू आना। ये कहने से कॉल सेंटर चलते हैं अभी, हम्म, उसमें कोई आप कार्रवाई कर सकते बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। सर कितनी बैंक का ये कौन खुला है भावनगर में? कितनी बैंक? लगभग सारी बैंक, लगभग सारी बैंक। सर ये जो लोग पकड़े गए उसमें एक आदमी होगा तो उसका कितने अकाउंट होगा? सभी बैंक में? एक आदमी के कुछ के जो है 3 अकाउंट भी मिले हैं और कुछ के भावनगर की जितनी बैंक है उन सब में अकाउंट निकले हैं। सर ये इंस्टेंट किट लेते थे क्या? हाँ, कुछ की किट जो है इंस्टेंट आती थी तो इंस्टेंट दे देते थे, कुछ की किट 1-2 दिन बाद आती थी तो ये घर से कलेक्ट करके फिर वो लेके जाता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया कि दशरथ उसके नीचे किट कलेक्ट करने वाला और उसके नीचे रिक्रूटर। तो रिक्रूटर का काम क्या है, अकाउंट खुलवाया, तुरंत किट मिल रही है तो तुरंत किट ले ली, वरना तो 2 दिन बाद किट कलेक्ट करी और फिर उसके मैनेजर को दी। फिर मैनेजर ऊपर फोटो या ऑफलाइन जैसे भी ऊपर दशरथ को इंफॉर्मेशन दे देगा ये अकाउंट मैंने फार्म कर लिया है, मतलब इसकी खेती कर लिया, अब तुम इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से। कितना कमीशन मिला होगा अभी तक? ये तपास का विषय तो ये है। अभी तक की पूछताछ में इसने कोई लिमिट सेट की थी कि एक अकाउंट में 10 लाख 25 लाख के? पूछताछ में नहीं, लेकिन जितनी एनालिसिस हमने बैंक अकाउंट्स की है तो अब कुछ में 5 लाख जितना ही हुआ है, कुछ में 15 लाख हुआ है, कुछ में 20 लाख भी हुआ है। तो ये सब तपास के विषय हैं, तो ये आने वाले समय में जैसे जैसे होगा बताएंगे। मार्च 2024 में भावनगर में एक सबसे बड़ा अकाउंट कांड हुआ था, उससे कुछ इनका लिंक है सर? उसमें 3 आदमी हैं अग्रवाल बंधु, हाँ। वो अभी तक फरार है, 2 इयर्स हो गया सर। ये नई इन्फॉर्मेशन है, इस पर भी एक तपास का विषय हो सकता है और इसको भी हम मतलब ध्यान में लेके फिर इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें अगर कार्यवाही जो कायदेसर होगी उसमें की जाएगी। अभी जो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, पहले साइबर क्राइम में नहीं होता था, बट जिस हिसाब से साइबर क्राइम एक अभी ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे चल रही है उसको ध्यान में लेते हुए सरकार श्री ने भी सही समय पर उस चीज को इंक्लूड किया। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये बताऊं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये चीज बोली है कि एक मर्डरर को सुधारा जा सकता है पर लेकिन एक साइबर क्रिमिनल को सुधारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, उसे कोई जानता नहीं तो उसे लगता है वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी दशरथ के ऊपर कौन है ये अपने को पता नहीं है, वो दशरथ जब पकड़ में आएगा तभी पता लगेगा। तो इसमें चाइनीज जो साइबर क्रिमिनल्स है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं बिल्कुल। और ये सारी ना स्पेकुलेशन है, तो अब लेट अस नॉट, मतलब स्पेकुलेशन में अपने को नहीं उतरना चाहिए वरना तो फिर चलता रहेगा। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन दशरथ अब देखो साइबर क्रिमिनल्स का तो ऐसा है कि 10 पास वाले भी, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे को इतना ही काम करना है तो उसमें भी वो करते ही हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।